morning students. How are you beta? I hope you all are happy and healthy at home. Students, keep continue your studies and never waste your time. Today we will discuss summary of chapter 7. Name of the chapter is birth. Birth here refers to the birth of a child and as well as the birth of the doctor. Written by A.J. Cronin. A.J. Cronin's full name is Archibald Joseph Cronin. He was born on 19 July 1896 and died on 6 January 1981. He was a Scottish novelist, dramatist and fiction writer. Let's take an introduction of the chapter first. This story is an extract from the Citadel, a novel by A.J. Cronin. The Citadel novel. It was published in 1937. Citadel novel से लिया गया एक पार्ट है ये चैप्टर. In this story, a young doctor revives a stillborn baby. Here, Joy Morgan and his wife got married before 20 years and they did not have a child so far. Now, at the present time, the wife of Joy Morgan is expecting a baby and Mrs. Morgan's mother and Joy Morgan were very nervous because the baby was going to be born before time. Now, Joy Morgan reached Dr. Andrew. He asked Dr. Andrew to help in the birth of the child. Dr. Andrew came, but when the baby was born, it was stillborn. And doctor got very nervous. He got very sad. But he tried very hard and saved the life of the mother as well as the baby also. Students, let's take an introduction of the characters in this story. Number 1, Dr. Andrew Manson. He is a doctor working in the mining town of Blenheim. He is optimistic, doubtful, analytical and patient. Doubtful only about marriage issues. Number 2, Joy Morgan. He is a driller in a mine. He is loving, caring, responsible, optimistic and trusting. Number 3, Susan Morgan. She is Joy Morgan's wife. She is loving and caring. Susan's mother. She is 70 years old, grey-haired lady. She is experienced, tactful. She has a great presence of mind. Number 5, the midwife. She is an experienced nurse to help in the birth of the child. She feels hopeless, helpless and fearful. Next, there is one more character and she is Christine. She is girlfriend of Dr. Andrew. And we find 2 or 3 names more. One name is more important, who is Dr. Edward Pace, with whom Dr. Andrew is working presently. Now let's start the summary. In the very beginning, we find Dr. Andrew's introduction. He is a newly medical out doctor and he is practicing in the hospital of Dr. Edward Pace in Blenheim in Wales. Blenheim is a mining area. There are so many mines and the people who work in these mines
living there. Means this area is a residential area for the mining people. Now, the hospital of Dr. Edward and the house of Andrew were near. Dr. Andrew has taken his residence near the hospital. In the very beginning of the story, Dr. Andrew returned his home and he found Dr. Andrew है वो रात को मिडनाइट में अपने घर वापस आता है और वह पाता है कि जो जॉय मॉर्गन है वो उनके घर और हॉस्पिटल के बीच में, क्योंकि दोनों पास पास ही थे, तो उन दोनों के बीच में वॉकिंग कर रहे होते हैं जॉय मॉर्गन, और बड़े उदास नजर आ रहे हैं, सैड हैं, नर्वस हैं। जैसे डॉक्टर एंड्रयू आते हैं उनके पास, तो वो डॉक्टर एंड्रयू को बताते हैं कि मैं पिछले 1 घंटे से आपका ही इंतजार कर रहा था और हमारी शादी को, जॉय मॉर्गन और सुसैन मॉर्गन की शादी को 20 साल हो गए हैं और जो मेरी वाइफ है अभी बच्चे को जन्म देने वाली है और उन्हें आपकी मदद की जरूरत है। डॉक्टर एंड्रयू अपने घर के अंदर जाते हैं, अपना बैग उठाते हैं और बाहर आ जाते हैं, जॉय मॉर्गन के साथ में चल पड़ते हैं। दोनों रास्ते में चले जाते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, गली में भी इतना शोर शराबा नहीं है, शांति है। अब जो जॉय मॉर्गन का रेजिडेंस है वो है 12 बेलेना टेरिस। 12 बेलेना टेरिस में है, जहां पर डॉक्टर एंड्रयू और जॉय मॉर्गन पहुंचते हैं साथ साथ जाकर के। अब 12 बेलेना टेरिस पहुंच करके जॉय मॉर्गन है वो बाहर ही रुक जाता है, वो घर के अंदर नहीं जाता है और डॉक्टर एंड्रयू को अंदर जाने के लिए कहता है और उसे कहता है कि हे मैन, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम हमारे लिए अच्छा ही करोगे। ऐसा कहकर के एंड्रयू को अंदर भेज दिया जाता है। एंड्रयू जैसे ही घर में प्रवेश करता है वह देखता है कि वहां पर एक नैरो स्टेयर्स है, पतली सी सीढ़ियां हैं, बीड़ी सी तंग सी सीढ़ियां हैं जो कि ऊपर बेडरूम में जाती हैं। डॉक्टर एंड्रयू सीढ़ियों से बेडरूम पहुंचता है, वहां जाकर देखता है कि मिसिज मॉर्गन बेड पर हैं और उनके साथ में मिसिज मॉर्गन की, सुसान मॉर्गन की मदर है और एक नर्स है, मिडवाइफ है। और जो मदर है वो 70 इयर्स ओल्ड है, सफेद बाल है, काफी एक्सपीरियंस है, विट्टी लेडी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड वो शो करने वाली है, बहुत ही समझदार नजर आती है। अब डॉक्टर एंड्रयू है वो चेकअप करता है, देखता है और उसे लगता है कुछ टाइम लगेगा। वह उदास था पहले ही, क्योंकि वह स्याही बिता कर आया था अपनी फ्रेंड क्रिस्टिन के साथ, उन्हीं यादों में वह खोया हुआ था, थका हुआ भी था। अब जैसे ही डॉक्टर के फेस पर ऐसे हाव भाव देखती है उदासी के, तो मिसेज मॉर्गन की मदर है वो डॉक्टर को बोलती है कि बेटा मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। डॉक्टर मना करता है, फिर भी जो लेडी है वो चाय बना देती है। वो सोचती है कि कहीं डॉक्टर है वो ये कहकर के ना चला जाए कि मैं बाद में फिर आऊंगा, अभी टाइम लगने वाला है। और डॉक्टर है वो भी ये सोचता है कि टाइम तो लगेगा, परंतु मैं घर जाकर के 1 घंटा भी रेस्ट नहीं कर पाऊंगा, फिर मुझे वापस आना पड़ेगा, इसलिए वो वहीं पर रुकने की ठान लेता है। और वह मिसेज मॉर्गन की मदर को कहता है कि माँ मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपना काम नहीं निपटा लेता। अब चाय बना दी जाती है, डॉक्टर चाय पीता है और मिसेज मॉर्गन की मदर डॉक्टर के सामने बैठी हुई है, उसके फेस को ही देखे जा रही है। और अब डॉक्टर एंड्रयू है वो विचारों में खो जाता है। वो सोचता है डॉक्टर एडवर्ड पेज की जो मैरिड लाइफ है वो हैप्पी नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है, और इसी तरह वो अदर लोगों के बारे में सोचने लग जाता है कि उनकी मैरिड लाइफ भी ज्यादा खुश की नहीं है। सभी के साथ किसी न किसी लेडी को धोखा दिया गया होता है, तो वो सोचता है कि मैरिड लाइफ ज्यादा अच्छी नहीं होती है। इन ख्यालों में खोया हुआ है, सोचे जा रहा है। तभी मिसेज मॉर्गन की माँ बोल पड़ती है कि मिसेज मॉर्गन ने मना किया है, सुसान ने कहा है कि उसको क्लोरोफॉर्म जो बेहोशी की दवा है वो ना दिया जाए, क्योंकि इस बेहोशी की दवाई से बच्चे के ऊपर असर होने का खतरा है। पर डॉक्टर है वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्लोरोफॉर्म से बच्चे के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है।
अब डॉक्टर एक बार सीढ़ियों से फिर ऊपर जाता है, जो प्रोग्रेस है वो देखता है, चेक करता है और फिर नीचे आकर के बैठ जाता है किचन में। अंगीठी में आग जल रही है, उसके पास बैठ जाता है, सोचता रहता है, क्रिस्टीन के बारे में सोचता रहता है, अपनी लाइफ के बारे में सोचता रहता है। और उसे आवाज सुनाई दे रही है, एक तो घड़ी की सुइयों की आवाज सुनाई दे रही है, दूसरा जो आग जल रही है उसके चटकने की आवाज आ रही है लकड़ियों के, और तीसरी एक और आवाज उसे सुनाई दे रही है, वो है मिस्टर मॉर्गन की पैरों की आवाज, जो कि बाहर गली में अभी भी वॉक कर रहे थे बड़े बेचैनी से। अब वह भी लेडी के फेस को देखता है कि इसकी आंखों में कितनी उम्मीद है अपने पोता पोती के लिए, और सुसैन मॉर्गन भी कितना चाहती है बच्चे को सुरक्षित पाना। अब रात के 3:30 बज जाते हैं और नर्स है वो ऊपर सीढ़ियों से ही आवाज लगाती है। डॉक्टर जाते हैं और देखते हैं और हार्ड लेबर करते हैं, परिश्रम करते हैं, एफर्ट्स करते हैं और बच्चे का जन्म हो जाता है। बच्चे का जन्म हो गया। अब डॉक्टर के शरीर में कपकपी दौड़ जाती है, क्योंकि बच्चा है उसमें कोई भी लाइफ नजर नहीं आती है, वो स्टिल बोर्न लगता है, जैसे कि वो मृत ही पैदा हुआ है, ऐसा बच्चा नजर आ रहा है। बच्चा एकदम वाइट है, उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है, मोशनलेस है, बच्चा स्टिल है। और अब जय मॉर्गन दूसरी तरफ एंड्रू है दूसरी तरफ देखता है कि जो मदर है उसकी स्थिति भी अच्छी नहीं है, उसके हाथ पैर भी सुन्न होते जा रहे हैं, उसकी जो पल्सेस हैं, नब्ज हैं, वो भी काम धीरे कर रही है। अब डॉक्टर के सामने डिलेमा आ जाता है कि वो मदर को बचाए या बच्चे को बचाए। अब वो डिसाइड करता है कि पहले वह माँ को संभालेगा और बच्चे को नर्स को दे देता है। अब डॉक्टर माँ को इंजेक्शन देता है और उसके साथ लेबर करता है, हार्डवर्क करता है ताकि वो बच जाए। और थोड़ी देर बाद मिसेज मॉर्गन है वो उसके अंदर थोड़ी ताकत आ जाती है, उसके बॉडी में गर्माहट आ जाती है और लगता है कि वो अब सही स्थिति में है। अभी वो अनकॉन्शियस ही है, बेहोशी की हालत में है, परंतु उसकी स्थिति में सुधार आ जाता है। अब डॉक्टर मिडवाइफ से, नर्स से पूछता है कि बच्चा कहाँ है। अब जो मिडवाइफ है वो कहती है कि बच्चा स्टिल बोर्न था, इसलिए उसको फेंक दिया है, बेड के नीचे डाल दिया है। डॉक्टर बिना देरी की पलक झपकते ही नीचे घुटनों पर बैठ जाता है और बेड के नीचे अखबार गिरे हुए थे जो कि गंदे हो गए थे, उनमें से बच्चे को ड्रैग करता है, खींच करके निकालता है और वह देखता है कि बच्चे की जो बॉडी है वो वार्म है। बच्चे का शरीर एकदम सफेद है, किसी सफेद मछली की तरह महसूस हो रहा है और वो सिर्फ स्किन ही स्किन है। ऐसे लगता है जैसे बॉडी में कोई हड्डी नहीं है, बोन्स नहीं है, बच्चे के शरीर में कोई भी बोन्स नहीं है। और ये एक बॉय था और उसकी वैसे जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो पूरा बना हुआ था, बॉडी पार्ट्स कंप्लीट थे, ऐसा डॉक्टर ने देखा। अब डॉक्टर ने उसको कृत्रिम सांस देने की कोशिश की और फटाफट मिडवाइफ को ऑर्डर किया कि 2 बर्तन के साथ गर्म और ठंडा पानी ले आइए। गर्म ठंडा पानी लाया जाता है, 2 बेसिल्स लाए जाते हैं, बाउल्स लाए जाते हैं। अब डॉक्टर एक बाउल में ठंडा पानी डालता है, दूसरे बाउल में गर्म पानी डालता है और वो गर्म पानी को ठंडे गर्म में मिक्स करके इस हद तक कर लेता है कि हाथ डालने पर उसको अच्छा महसूस हो। अब वो स्टार्ट करता है अपनी थेरेपी। बच्चे को एक बार गर्म पानी में डालता है, दूसरी बार ठंडे पानी में डालता है। इस तरह से कंटिन्यू जल्दी जल्दी फटाफट डॉक्टर एंड्रू है वो इस काम को जारी रखता है। बच्चे को ठंडे पानी में डालता है, बच्चे को गर्म पानी में डालता है और इस प्रक्रिया में डॉक्टर एंड्रू पसीने से तरबतर हो जाता है। उसकी बॉडी से पसीने बहने लगते हैं, पूरा गीला हो जाता है, उसकी आंखों में पसीने आने लगते हैं, परंतु बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं होता है। जब डॉक्टर एंड्रू है देखता है कि कुछ नहीं हो रहा है, निराश हो जाता है, उदास हो जाता है और होपलेस हो जाता है थोड़ा सा, परंतु फिर भी वह बच्चे को एक टॉवल में लपेटता है और देखता है कि टॉवल भी पूरा गीला हो गया है, फर्श वहां का पूरा गीला हो गया है, सब जगह गंदगी फैल गई है, परंतु फिर भी वो आखिरी कोशिश करने की तैयार होता है। नर्स बीच में टोकती है कि कुछ नहीं होने वाला है, बच्चा स्टिल बोर्न है, बच्चा मर्द पैदा हुआ है, आप इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। परंतु डॉक्टर एंड्रू है वो आखिरी कोशिश करता है नर्स की बात को इग्नोर करके और वह बच्चे की छाती को दबाना स्टार्ट कर देता है, पुश करता है उसकी चेस्ट को जो छोटी सी है। और आधे घंटे की मेहनत के बाद फिर से वह उदास हो जाता है, परंतु तभी एक मिरेकल
घटित होती है, एक चमत्कार होता है। बच्चे की छोटी सी छाती में कहीं से एक हल्की सी सांस आती है। अब डॉक्टर ने जैसे ही उसको देखा, उसके अंदर उम्मीद की किरण आई, डॉक्टर के अंदर थोड़ी खुशी आई और उसने बच्चे की छाती को बार बार दबाना जारी रखा। जिससे पहले बच्चे ने एक सांस ली, फिर 2 सांस ली और धीरे धीरे करके बच्चा सांस लेने लगा। बच्चा सांस लेने लगा, बच्चे की हालत सुधरी, बच्चे ने रोना भी स्टार्ट कर दिया। अब बच्चे के अंदर लाइफ आ गई। जो नर्स है वो भगवान का धन्यवाद करती है, हे भगवान, ये तो तुमने चमत्कार किया है, एक मृत बच्चे को जीवित कर दिया है। अब डॉक्टर देखता है कि बच्चे का जो व्हाइट शरीर, जो कि व्हाइट मछली की तरह दिख रहा था, अब वो पिंक होने लगा है। मीन्स बच्चे में रंगत आ गई है। पहले बच्चे का व्हाइट शरीर ऐसे लग रहा था जैसे ये एस्फेक्सिया हो। एस्फेक्सिया मीन्स क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, अनकॉन्शियसनेस ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे महसूस हो रहा था। अब बच्चे को ऑक्सीजन मिल गई है, सांस लेने लगा है। बच्चे के एक नाक से एक बलगम का बुलबुला भी निकलता है और इस तरह बच्चा है वो लाइफ को प्राप्त कर लेता है। अब डॉक्टर नर्स को बच्चे को सौंप देता है और कमरे की हालत देखता है। जब स्टार्टिंग में डॉक्टर आया था तो कमरा साफ सुथरा था, सजा हुआ नहीं था, बट क्लीन था। और अब कमरे में कहीं पर गीला टॉवल गिरा है, कहीं पर पानी का जग गिरा हुआ है, कहीं पर पानी फैला हुआ है। मीन्स पूरी तरह से वहां पर लिटर है, गंदगी फैली हुई है। डॉक्टर देखता है कि सुसैन मॉर्गन की जो मदर है वो दीवार के साथ लगी हुई खड़ी हैं, हाथ जोड़ करके, और अपने होठों को हिला रही हैं। मीन्स वो प्रेयर कर रही थी गॉड से बच्चे की लाइफ के लिए। और डॉक्टर सोचता है कि भगवान ने उनकी प्रेयर को स्वीकार कर लिया है। अब डॉक्टर नर्स को बोलता है कि मैं अपना बैग बाद में मंगा लूंगा, और वहां से नीचे चला जाता है। नीचे पहुंच करके डॉक्टर किचन में एक लंबी घूंट पानी की पीता है। पानी पी करके वह अपना कोट उठाता है और बाहर निकलता है, जहां पर वह पाता है कि जॉय मॉर्गन बड़ी बेचैनी से वॉक कर रहे थे। और अब सुबह के 5 बज चुके हैं, दिन निकल आए हैं। लोग हैं वो माइंस से वापस आ रहे हैं, कुछ माइंस में काम करने के लिए जा रहे हैं, कुछ नाइट शिफ्ट से वापस आ रहे हैं। गली में मीन्स बहुत सारे लोगों की चहल पहल भी है। इस तरह का माहौल है। डॉक्टर अपनी उदासी में, डलनेस में अपने घर की तरफ जा रहा है। थका हुआ है, काफी मेहनत की है उसने, परंतु वह अपने विचारों में सोचता हुआ जा रहा है कि आज मैंने कुछ किया। आई हैव डन रियल समथिंग टुडे। भगवान को धन्यवाद करता है और बार बार यही सोचता है, हे भगवान, आज मैंने कुछ वास्तविक किया है। इस तरह से डॉक्टर अपने घर पहुंच जाता है। स्टूडेंट्स, वी सी हाउ ए स्टिलबॉर्न बेबी came to life with the efforts of the doctor। यहाँ पर डॉक्टर है वो सोचता है कि जो मेडिकल की पढ़ाई है वो पढ़ते हैं वो डिफरेंट होती है, परंतु जो प्रैक्टिस से, जो रियलिटी में करके सीखा जाता है वो डिफरेंट थिंग है। ये डॉक्टर को आज पता चल जाता है। और डॉक्टर के लिए ये जो रात्रि है ये एक अनयूजुअल नाइट साबित होती है, और जो कि ब्लेनली में डॉक्टर को काफी फेमस कर देती है। ऐसा डॉक्टर ने कभी भी सोचा नहीं था कि आज की रात्रि उसके लिए ऐसी साबित होगी। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड समरी ऑफ चैप्टर बर्थ। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।